Burkim ha Bahaim. Burkim ha Bahaim. Welcome to you all to learn the language of Hebrew. और मैं इब्रानी भाषा सीखने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। I thank the Lord that God is enabling to us to learn this language. और परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम इस भाषा का प्रयोग कैसे करें। And I thank for all the viewers, those who are giving of your time to learn this language. और मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समय निकालकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और भाषा सीख रहे हैं। You know, I really appreciate and also congrats for most of the people those who are showing your interest in learning of this language. और मैं उन सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो रुचि दिखा रहे हैं इस भाषा को सीखने में। And also I thank for all the people those who are giving us your suggestions and feedbacks and moreover calling us and commenting about this program. और मैं उन सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें सलाह दे रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम के विषय में। In the last 2-3 episodes on, we have been learning concerning the classification of the vowels. और पिछले 2-4 कार्यक्रम से हम देख रहे हैं स्वरों के प्रकार के विषय में। In that I said that in the Hebrew language, the Jewish Masoretic scholars जो हम देखते हैं इब्रानी भाषा के जो जानकार हैं जो कि इब्रानी भाषा को सिखाते हैं, and these Jewish scholars they have introduced of 17 vowel pointings. और ये जो चीजें हैं वो यहूदी मेसोरेटिक द्वारा लाई गई थी। And I said you all that they have introduced in AD 500 of 17 vowel pointings. और उन्होंने इस 17 पॉइंटिंग का आविष्कार किया था 500 BC में। And I said that these 17 vowel pointings were classified into 3 sections. और मैंने आपको बताया था कि 17 वोवल पॉइंटिंग का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से बटे हुए हैं। Okay, so what are they? और ये क्या है? Number 1, it is the short vowels. पहला है छोटे स्वर। And number 2, it was long vowels. और दूसरा है लंबे स्वर। And the third one was it's the composite vowel pointings. और तीसरा है कंपोजिट वोवल पॉइंटिंग। So that's what we have seen in the last 2-3 episodes. और ये चीजें हमने सीखी हैं पिछले 2 से 3 कार्यक्रमों में। And also I said that within these vowels there are some vowels are called as the full vowels. और मैंने आपको बताया था कि इन स्वरों में कुछ बोले जाते हैं पूरे स्वर, which means that it's the short vowels and long vowels. इसका मतलब है कि छोटे स्वर और बड़े स्वर। We can recognize it by और हम इसको पहचान सकते हैं by looking that as in English we have 5 vowels. और जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी में 5 स्वर हैं। So in the same manner we have to look from these vowels, do we get of these 5 vowels of English? और हम इस बात को भी देखेंगे कि हम इन स्वरों से जो अंग्रेजी के 5 स्वर है उन्हें पाते हैं क्या। So what are those 5 vowels? और ये कौन से 5 स्वर हैं? It is A, ये है A, E, E, I, I, O, O, U. U। So when we look into these short vowels, जब हम इन छोटे स्वरों को देखते हैं and there we have to see of these 5 vowels which we get from the English. और तब हम इन 5 स्वरों को देखते हैं जो अंग्रेजी से आते हैं। Okay, so can you repeat after me? What are they? आप मेरे पीछे बोलिए ये क्या है। Okay, so in short vowels we said that 5 vowel pointings are there. और हम देखते हैं कि छोटे स्वरों में छोटे 5 पॉइंटिंग हैं। It is pata, ये है पाटा which means A, जिसका मतलब है ए, irek, इरेक which is I, जो कि है आई, shegol, शेगोल which means E, जिसका मतलब है ई, kibus, कीबुस which means U, जिसका मतलब है यू, and kamex atuf, कामेक्स अटूफ which is O. जो कि ओ है। And now we'll pronounce after the long vowels. अब हम बोलेंगे लंबे स्वर। Okay, in the long vowels we have 7 vowel pointings, हमारे पास लंबे स्वरों में 7 वोवल पॉइंटिंग है, but in that we need to get the 5 vowels of English. परंतु हमें उसमें लाने की जरूरत है 5 स्वर जो अंग्रेजी से हैं। Okay, what are they? वो क्या है? Kamex, कामेक्स, A, ए, irek yod, इरेक योत, I, आई, sare, सरे, E, ई, sare yod, सरे योत, E, ई, and olem, और ओलेम, O, ओ, olem wow, ओलेम वाओ, O, ओ, surek, सूरेक, U. यू। Okay, these are, even though 7 are there, but we get what? 5 vowels of English. इनके साथ होने के बावजूद भी हम इनमें से पा लेते हैं 5 अंग्रेजी के स्वर।
And now we'll come to the composite vowel pointings. अब हम आते हैं कंपोजिट वोवेल पॉइंटिंग पे। How many are there? ये कितनी है? So I believe that now you are able to calculate. मुझे लगता है कि अब आप इसकी गणना कर सकते हैं। Okay, in the short vowels 5. देखते हैं छोटे स्वर में 5 होते हैं। When we look into the long vowels, जब हम लंबे स्वरों को देखते हैं and there we got 7 vowel pointings. उसमें हम पाते हैं 7 वोवेल पॉइंटिंग, So which means 5 plus 7. जिसका मतलब है 5 प्लस 7। How much it is? ये कितना हुआ? It is of 12. ये बनता है 12। So how many are remaining now? तो अब कितने बच गए? It is of 5. और ये 5 हैं अब। So which means that I was telling you that it was 17 vowel pointings which were introduced. मैं इस प्रकार से आपको बता रहा था कि कैसे 17 पॉइंटिंग वोवेल पॉइंटिंग आई। And then now coming into this short composite vowel pointings. अब हम आते हैं छोटे कंपोजिट वोवेल पॉइंटिंग पर। So in that we can see that shava, उसमें हम देखते हैं शवा को, e, ई, and atef pata, और उसमें हम पाते हैं अटेफ पाटा, a, ए, atef shegol, अटेफ शगोल, e, ई, atef kamex, आटेफ कामेक्स, a, ए, kamex a. कामेक्स ए। It is a. ये ए है। Okay, so today in this episode, आज के इस कार्यक्रम में I am going to teach you to in a easy way where you are able to identify this vowel pointings. और मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जो आप देखेंगे इस वोवेल पॉइंटिंग में। So today we are going to learn about the summary, आज हम सीखने वाले हैं सारांश के विषय में, chart चार्ट के विषय में, of vowels. जो कि स्वरों का है, या कह सकते हैं सारांश चार्ट स्वरों का। Okay, so this 17 vowel pointings ये जो 17 वोवेल पॉइंटिंग है, are set in the class wise. इसको हम एक क्लास वाइज लगाते हैं। It means to say, इसको हम बोल सकते हैं in the ancient Hebrew, जो कि प्राचीन इब्रानी थी। okay, before this Jewish Masoretics introduced the vowel pointings, इससे पहले कि यहूदी मेजरेटिक ने इसको लाया था प्रचलन में, so the Jewish people, they had to pronounce 3 vowels. जो यहूदी लोगों थे उनको 3 प्रकार के स्वरों को बोलना रहता था। Okay, it is not the written vowel, ये कोई लिखे हुए स्वर नहीं but थे, it is the matter of a spoken vowel. ये एक बोलने वाले वोवेल हुआ करते थे या बोलने वाले स्वर थे। It is like A, ये ए था, I, आई, and U. यू, Okay, A, I, U, ए, आई और यू, which is that they used to use, जिसको वो इस प्रकार से प्रयोग में लाते they थे। used to use He वो लेते थे हे को as A, ए की तरह से, and they used to use Yod और वो योद को लेते थे as I, आई के रूप में, and they used to use Vav, और वो वाव को लेते थे it is as U. यू के रूप में। So now we need to understand that. अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है, So for A, जो कि ए है, they used to use He, वो हे का प्रयोग करते थे ए के लिए, and for I, और आई के लिए and they used to use Yod, वो योद का प्रयोग करते थे, and for U, और वो यू के लिए they used to use Vav. वो वाव का प्रयोग किया करते थे। And also another thing that you have to keep in your mind, और दूसरी बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, they used to use it वो इसको इस प्रकार से प्रयोग में लाते थे, Yod योद, even as E. ई के रूप में भी वो उसे लेते थे। For U, जो यू है they used to use it as O. वो ओ के रूप में लेते थे। But only the thing is that they had A class, I class, U class. परंतु बात ये जानने वाली है कि केवल उनके पास ए क्लास, आई क्लास, यू क्लास यही श्रेणियां थी। So in this summary, जब हम इस सारांश चार्ट को देखते हैं, there we will understand that ये हम बात समझेंगे यहाँ पर, these Masoretic Jewish scholars, जो यहूदी माजरेटिक विद्वान हुआ करते थे, they did not deny of this. वो इसको नहीं खंडित करते थे। Can you do one favor for me? क्या आप मेरे लिए एक बात को करेंगे? Please open your notes which you have been writing about these vowels जो आप इन स्वरों के विषय में अपने किताब में लिख रहे थे उनको खोलिए जरा, and take the glimpse at what you have written. आप उसको देखिए कि आपने अपनी किताब में क्या लिखा है। Just for 2 minutes. केवल 2 मिनट के लिए You see your notes अपने किताब में देखिए। and seeing this one जब आप इसे देखते हैं, and see at your notes, जब आप अपनी किताब में देखेंगे, and then you are able to understand what that I am going to teach you today. तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। Ready? आप तैयार हैं? So open your notes आप अपनी किताब को खोलिए, and come to the page अब उस पन्ने पे आइए, and see how they have used of this. आप देखिए कि हमने इसका कैसे प्रयोग किया है। Hello?
सुन रहे हैं? Please do it. आप इसको करिए, Then only it will be very easy for you to learn this vowels summary chart. तभी आपके लिए सारांश चार्ट को सीखना और समझना बहुत आसान हो पाएगा। Ready? आप तैयार हैं? I think that you are doing it. मुझे लगता है कि आप इस काम को कर रहे हैं। I hear the paper sound. मैं आपके पन्ने के पलटने की आवाज को अच्छे से सुन पा रहा हूँ। Where it is? ये कहाँ है? Yes, it is right. या इसी पन्ने पे है? Yes. ये इसी पन्ने पे है। So see that. आप इसे देखिए। Okay, when they have used A, जब इन्होंने इस ए का प्रयोग किया, do you see where they have used he? उन्होंने कहाँ पर हे का प्रयोग, Or do you see where they have used this yod? यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे योद का प्रयोग हुआ And है where they have used this vav? और कहाँ पर उन्होंने वाव का प्रयोग किया है। You got it? आपको मिल गया है? Yes. आपको मिला होगा। Yod, जो योत है you saw, उस आपने देखा or होगा, you can see that आप देख सकते हैं in which vowels? वो किस स्वर में है। Yes, it is in long vowels. वो एक लंबे स्वर में है। Hirek yod, जो हिरेक योत है, sare yod. सरे योत। What about this? इसके लिए क्या है? Yes, you are correct. आप सही है एकदम। Again, you have seen it आपने फिर से देखा होगा। in the long vowels. ये है लंबे स्वरों की श्रेणी में। So what is that? ये क्या है? Holem होलेम as well as Surek. इसके अलावा सुरेख। You are doing very good job. और आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। Okay, so now we'll see how they have arranged this 17 vowel pointings. अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इन्होंने 17 वोवल पॉइंटिंग को एक श्रेणी में लगाया है। Okay, so number 1, I will write this simple Sheva. और यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल सेवा। Okay, this simple Sheva, जो ये सिंपल सेवा है, how to write this one? ये कैसे लिखी जाएगी? Sheva is written in 2 dots, जो शिवा है उसको हम 2 बिंदु में लिखते हैं। which is like, वो इस तरह से है as we write in English, colon. जैसे कि हम अंग्रेजी में लिखते हैं कॉलन। So it is the 2 dots. ये 2 बिंदु हैं। So this simple Sheva, जो ये 2 बिंदु हैं या फिर जो सिंपल सेवा है, it takes in all these 3 classes. ये तीनों श्रेणी में आती है। It is A class, ये ए क्लास में भी आती है, I class, आई क्लास में भी आती है, and U class. यू क्लास में भी आती है। So it will take in these 3 classes. और ये तीनों श्रेणी में आपको मिलेगी। So what does it means? इसका मतलब क्या होता है? Okay, Sheva means what? सेवा का क्या मतलब है? It is E. इसका मतलब है ई। Okay, in this form that we will write. हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। So it is written E, and above that it will be like semicircle, और जो ई लिखा गया है उसके ऊपर आधा गोला प्रकार से होगा, or else it looks like half moon. और या फिर आप बोल सकते हैं वो आधा चंद्रमा की तरह दिखेगा। So in this 3 that we see, it will take in the A class, I class, U class. और ये जो तीनों हैं वो आती हैं ए श्रेणी में, ई श्रेणी में और आई श्रेणी में भी। So now you tell me what are those 3 classifications? अब आप मुझे बताएंगे वो 3 श्रेणियां या 3 प्रकार क्या थे? What is the number 1? पहला क्या था? It is of short vowels. ये है छोटे स्वर। Okay, so in short vowels, जो शॉर्ट वॉवल हैं या छोटे स्वर हैं, so whatever the vowel comes with A, उसमें कौन सा स्वर आता है ए के साथ? what is that? वो क्या है? Okay, it is pata, वो है पाटा, which is A, जो कि है ए। and उसके अलावा then coming to the I or E. जब हम आई और ई पर आते हैं, So what is that? वो क्या है? For I, what is that? आई के लिए क्या है? It is a dot, वहाँ पर एक बिंदु है which is जो कि I. है आई। What dot we call this one? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? What is that? उसको क्या कहते हैं? It is as Hirek. उसको हम कहते हैं हीरे के रूप में। And then और उसके बाद now we have to find out for E, अब यहाँ पर हम देखेंगे ई के लिए क्या है। which is the one E. इसमें ई क्या है? E is जो ई है 3 dots, 3 बिंदु हैं, which is जिसका मतलब है E. ई। See, remember, हमेशा इस बात को याद रखें, we write it in a short form, we write for before. जब हम इसको छोटे प्रकार में लिखते हैं तो हम इसे पहले लिखते हैं। E is the segol. जो ई है वो सेगोल है। So how we write this segol? हम सेगोल को कैसे लिखते It हैं? is as in English in short form, we will write the before. जैसे कि हम अंग्रेजी में जो एक चिन्ह लगाते हैं बिफोर के लिए, So in the same manner, we put off 2 dots in straight, and in the middle we put down a small dot. जैसे कि हम लगाते हैं एक बिंदु पहले, एक बिंदु उसी की सीध में, दूसरा बिंदु और उसके नीचे एक और बिंदु।
And now we'll look at for this. अब हम इसको देखेंगे. Now we'll look for U. अब हम यू को देखेंगे. So U, जो यू है it is the kibbutz. वो कीबुस है. So which is as a slash we make the line, in the same manner we put the 3 dots, जैसे हम स्लैश के लिए एक लाइन को खींचते हैं उसी तरह से हम 3 बिंदुओं को लगा देते हैं which is U. जो कि यू बनता है. And now we look for O, अब हम ओ के लिए देखेंगे which is जो है like small t, जो है एक छोटे टी की तरह. and we call this one as और हम इसे इस प्रकार से कहते हैं Kamex Atuf, कामेक्स अटोफ, which is जो कि है O. ओ. Now we'll come to the long vowels. अब हम आते हैं लंबे स्वरों की ओर. So long vowels. जो लंबे स्वर हैं. So which is the long vowel? लंबे स्वर क्या है? Number 1, पहला है it is Kamex. जो है कामेक्स. How to write Kamex? कामेक्स को किस प्रकार से लिखेंगे? It is same like T, बिल्कुल टी के रूप में कामेक्स को लिखते हैं. but when we write it is A, जब हम ए की तरह लिखते हैं but above that there will be a line. उसके ऊपर एक लाइन बन जाती है या Now बनाते हैं. Okay, now we'll come to this. अब हम इसके ऊपर आएंगे. Again, don't get confusion. I already clarified you very clearly in the last episode. दोबारा से फिर मत गड़बड़ा जाइएगा क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कार्यक्रम में मैंने उसको अच्छे से समझाया I था. said here also T and here also T. वहाँ पे भी टी है और यहाँ पर भी टी है. This is the vowel pointing. यहाँ पर हम देखते हैं ये स्वरों की पॉइंटिंग है. It is used very rarely in the language. हम इसको बहुत ही कम प्रकार से यूज करते हैं जब हम इसकी भाषा को प्रयोग करते हैं. But everywhere we use of Kamex. हम हर जगह कामेक्स का प्रयोग लाते हैं. Okay, so that you have to keep in your mind as you use the language. आप जब इब्रानी भाषा का प्रयोग करें तो इस बात को आप जरूर से अपने दिमाग में रखेंगे. And now here, जब हम यहाँ पर देखते हैं here is the Hirek Yod, यहाँ पर हिरेक योत है which is I. जो कि आई है. And then और इसके बाद we come for Sare, जब हम सारे पे आते हैं which is E. जो कि ई है. How to write? कैसे लिखेंगे? There is a line above that. ई के ऊपर एक लाइन है. And now we'll come to the Sare Yod. अब हम सरे योत पर आते हैं. How to write? कैसे लिखेंगे? E, ई, but परंतु we come like this. ढाल की तरह बनाते हैं. Okay, it is like semicircle that we do it. ये एक आधे गोले की तरह है जो नीचे की ओर जाता है. And then here यहाँ पर हम देखते हैं. we come for U. यहाँ पर हम आते हैं अब यू के ऊपर. It is Surek. ये सुरेख है. See, it is written here, ये यहाँ पर लिखा है. which means इसका मतलब है U, यू and above that there will be a line. और यू के ऊपर एक सीधी लाइन है. And now what is remaining? अब क्या बचता है? In this, what is remaining? अब इस सब में क्या बचा? Can you able to see? आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है? A, ए, I, आई, E, ई, U. यू. So what we have to write? अब क्या बचा है? We have to write अब हमें लिखना है. is, वो है, tell me, बताइए मुझे, what we have to write? हमें क्या लिखना है? We have to write or we have to find out O. अब हमें लिखना है या पता लगाना है ओ के विषय में. Okay, it is Holem. ये होलेम है. How to, Holem is O. होलेम का मतलब है ओ. And there will be a line. और उसके ऊपर एक लाइन होगी. And then one more is there, और वहाँ पर एक और है which is Holem Wow, जो कि है होलेम वाव, which is जो कि है O, ओ. but we'll make like this. अब हम उसके ऊपर आधा गोला लगाएंगे जो कि नीचे की ओर आएगा. Dear viewers, हम प्रिय मित्रों, please carefully identify. आप इसे बहुत सही तरीके से पहचानना सीखिए. When we write the Hirek, जब हम हिरेक को लिखते हैं it is under the consonant. वो व्यंजन के नीचे होता है. When we write the Holem, जब हम होलेम लेते हैं it is above the वो ऊपर होता है consonant. व्यंजन के. Okay, I'll write one example. मैं आपके लिए एक उदाहरण लिखूंगा. Okay, I'll write here. मैं ऊपर लिखता हूँ. Okay, when I use जब मैं प्रयोग करता हूँ, this one here, इसका यहाँ प्रयोग करता हूँ, it is considered as इसको हम मानते हैं Hirek. हीरे के रूप में. Okay, अब when I use जब मैं प्रयोग करता हूँ this one here, इस बिंदु का ऊपर, this I consider it as Holem. मैं इसको होलेम के रूप में यूज करता हूँ. Okay, so when I use this one, जब मैं इसका प्रयोग करता हूँ, I use this one as BI. मैं इसका प्रयोग करता हूँ BI.
आई के रूप में। And when I use this one here, जब मैं इसका प्रयोग करता हूँ, I use this one as BO. मैं इसका प्रयोग करता हूँ BO के रूप में। Why? क्यों ऐसा है? Because the dot is at the down, it is I. जो डॉट नीचे है, बिंदु नीचे है, वो आई है। What is this dot is called? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? It is called as Hirek. इसको हम कहते हैं हीरेक। And here, और जो यहाँ पर हम देखते हैं, this dot, ये जो बिंदु है यहाँ, we call this one as Holem. हम इस बिंदु को यहाँ कहते हैं होलेम। Okay, so keep in your mind, अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठा लें। when it is at under, जब ये नीचे होता है, it is I. वो आई होता है। When it is above, जब वो ऊपर होता है, of the left side of the consonant, जब वो व्यंजन के दाईं ओर होता है, it is O. वो ओ होता है। Okay, that you have to keep in your mind. आपको इस बात को दिमाग में रखना बहुत So जरूरी now है। we'll come to the अब हम आते हैं composite. कंपोजिट पर। So in the composite, जब हम कंपोजिट को देखते हैं, what they have done. उन्होंने वहाँ पर क्या किया है? Okay, in the composite, जब हम कंपोजिट को देखते हैं, so they brought वो वहाँ पर लाते हैं। number one, पहला है, it is Atef. ये है आटेफ। Atef is same this one, two आ- dots as we use for Shiva. जैसे हमने शिवा के लिए प्रयोग किए थे 2 बिंदु, वैसे ही And इसके लिए है। then we will have the Pata. उसके बाद है पाटा। Pata. पाटा So which is जो कि है A, ए, and then और उसके बाद we'll come to this. आधा गोला जो नीचे की ओर, And here, और यहाँ पर and then we come to here, जब हम यहाँ पर आते हैं, we come for Atef Shagol, हम आते हैं अटेफ शुगोल पर, which is E, जो कि ई है। the same manner. उसी तरह से And then when we come here, जब हम यहाँ पर आते हैं, we come for हम यहाँ पर आते हैं Atef आटेफ Kamix, कामिक्स, which is जो कि है O. ओ, The same we come to the matter. और फिर हम उस पर आधा गोला लगाएंगे। So now, अब हम देखते हैं, are you able to understand? क्या आपको अब समझ में आ रहा See, है? in A class, जो ए श्रेणी है, whatever जो भी था, it is coming with A, वो हर कुछ आ रहा है ए के साथ, so they set it in the A class. तो इसीलिए वो ए श्रेणी में है। And whatever जो कि आ रहा है, is coming with I, जो आ रहा है आई में, and whatever is coming with E, जो भी आ रहा है ई में, they brought it into the I class. वो उसको आई की श्रेणी में ले आए हैं। And whatever is coming with U, जो भी आ रहा है यू में, or whatever is coming with O, जो भी आ रहा है ओ के साथ, and they brought it in the U class. और वो उन सबको मिलाकर यू श्रेणी में ले आए हैं। So that is what you have to keep in your mind. और इसी बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। When I say A class, जब मैं आपको बोलता हूँ ए श्रेणी, all the vowel pointings which are coming with A, जो भी वॉवल पॉइंटिंग या स्वर पॉइंटिंग आ रही है, वो ए के साथ है। it is from वो है short vowels, छोटे स्वरों से, long vowels, लंबे स्वरों से, composite vowel point. कंपोजिट स्वरों से। So A they brought in the A class, जो ए है वो लेकर आए हैं ए श्रेणी के अंदर। and in I class जो आई है, from 3 groups वो 3 समूह से, or from 3 sections, और वो 3 प्रकार से, and they brought and they placed I and E. और उसके अंदर उन्होंने रख दिया है आई और ई को। And when we come to here, और जब हम यहाँ पर आते हैं, so from these 3 sections, और ये जो 3 श्रेणी है उनमें से what are those sections? वो कौन सी श्रेणियां हैं? Short vowels, पहला है छोटा स्वर, long vowels, दूसरा है लंबा स्वर, composite. तीसरा है कंपोजिट So they स्वर। brought and they kept और वो सब चीज को लाकर यहाँ रख दिए हैं U and O. यू और ओ में। Now you may be asking me a question. अब आप मुझसे एक प्रश्न को पूछने वाले होंगे, The question is, sir, when we count here, we are getting only 16. सर जब मैं यहाँ पर इसको गिन रहा हूँ तो केवल यहाँ पर 16 ही आ रहे हैं, So which is the one is missing? अब कौन सा यहाँ पर नहीं है? Where you only raised the question, अरे आपने ही मुझसे प्रश्न को पूछा है, so I need your answer. तो मुझे ही आपसे उत्तर मिलना चाहिए। Should I wait for next week? क्या मुझे अगले हफ्ते के लिए तैयार होना चाहिए? So whoever is watching, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, call me. आप मुझे कॉल कर सकते हैं The number that you see. उस नंबर पे। I'm not going to tell it. मैं आपको नहीं बताने वाला अभी, I just want to give you work for your brain. मैं आपको आपके दिमाग के लिए काम देना चाहता हूँ। I can say where, what is that? मैं बता सकता हूँ ये क्या है। It is ये है Kamix कामिक्स Hey. हे। What is the Kamix Hey?
कामिक्स है क्या है? It is also A. वो भी A है। So we got complete 17 set. तो अब हमें पूरा 17 का एक समूह मिल गया है। So please keep this thing in your mind. इसलिए कृपया करके अपने दिमाग में बातों को बैठा The summary लीजिए। chart of vowels. जो सारांश चार्ट है स्वरों का, Okay, the simple Shiva. जो सिंपल शेवा है, It is in all the classes. वो हर एक श्रेणी में पाई जाती है। In the short vowel, जो छोटे स्वर हैं उसमें, long vowel, लंबे स्वरों में, and in the composite. और जो कंपोजिट स्वर हैं उसमें It भी, is in all. ये सभी में है। Okay, so now coming to this, जब हम इस पे आते हैं, in A class, ए श्रेणी में, so they brought all A. वो सारे ए को यहीं इकट्ठा किए हैं। In I class, जब हम आई श्रेणी को देखेंगे, they brought all I and E. वो सारी आई और ई को यहाँ उठा लाए हैं। And in U class, जब हम यू को देखेंगे, they brought U and O. वो यू और ओ को यहाँ इकट्ठा किए हैं। Okay, this is what that you have to learn, and when you learn, it will be very easy for you to read the Hebrew language. और जब आप इन सभी बातों को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आप इब्रानी भाषा को पढ़ सकें। So once again, मैं एक बार फिर कहूँगा, I encourage you all मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूँगा to learn this language. इस भाषा को सीखने के लिए। Show your efforts, आप अपने कार्य में इस बात को दिखाएं, because क्योंकि we are here हम यहाँ पर इसलिए हैं to rightly divide the word of the truth. ताकि हम अच्छी बातों को, सत्य बातों को बता सकें। That is what our work. और यही हमारा कार्य है। Because we see various kinds of sermons are coming, हम देखते हैं कि बहुत सारे संदेश आ रहे हैं and many people get confused. और बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। So to get out of those things, ताकि हम उन सब बातों से बाहर आए, it is your time ये आपका समय है to understand ताकि आप सीख सकें the Bible बाइबल को अच्छे से, in written language. जो कि जिस भाषा में वो लिखी गई है। Okay? इसलिए So until that, तब तक के लिए, keep on practice. और आप तब तक अभ्यास करते रहिए। Be in touch with us. आप हमारे साथ जुड़े रहिए। Give us your suggestions, आप हमें सलाह दे सकते हैं, or give us your feedback. आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। And even if you want to talk to us, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, here is the number, आप नंबर को देख सकते हैं, and you can call us. आप हमें कॉल कर सकते हैं। If you have any doubt, आपके दिमाग में कोई भी शंका है, or if you want any clarification, आप किसी बात पर हमसे जानना चाहते हैं, और I am here मैं यहाँ पर हूँ to help you. आपकी सहायता के लिए। Until that, तब तक के लिए may God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।